So let me begin sharing the screen. Just one moment. Okay, so today we'll do India again, the first lesson from the essay India Again by E.M. Forster. सर स्क्रीन शेयर नहीं है सर। हाँ, अभी हम शुरू कर रहे हैं। सलमान खान लेफ्ट, उसका बेचारे का लगता है कि गलती से लॉग आउट हो गया। Can you see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so here we begin the essay section. As you can see, India Again. Now, the reason why the title of this essay is India Again is because the writer of this passage, Edward Morgan Forster, he has visited India twice. He had visited India once long time ago, and then after 9 or 10 years, he has revisited India again. यानी दोबारा वो आए थे और इंग्लैंड से वो आए थे, इसलिए इसका टाइटल जो है वो है इंडिया अगेन। रीजन बिकॉज एक बार उन्होंने इंडिया को विजिट किया और 8 या 9 साल बाद दोबारा उन्होंने विजिट किया था। एंड his name was Edward Morgan Forster. He loved India. India से उनको कोई खास लगाव था, and that is the reason why he came to visit India again twice. So Edward Morgan Forster was the only remaining child of an architect. यानी उनके पिताजी एक आर्किटेक्ट थे, एक इंजीनियर जो घर का डिजाइन और नक्शा ये सब बनाते हैं। He was his only child. So Edward Morgan Forster, born 1879, he passed away in 1970. He was the only remaining child of an architect who died when the child was just 1 year old. His mother was from a middle class family. So एक उनका पारिवारिक इंट्रोडक्शन हो रहा है जो लेखक हैं इसमें। 1 year old. His mother was from a middle class family. Morgan, the writer, Morgan was a product of the English upper middle class.
he was educated. उनका शिक्षा दीक्षा जहां से हुआ था उसका पूरा उन्होंने उसका पूरा वर्णन इस लेख में है, that how he was educated and things like that. So he was educated at Tonbridge School from 1893 to 1897 and at King's College, Cambridge. So Forster wanted to know Indians. उनको खास तौर पे जो Indians थे उनको वो समझना चाहते थे, जानना चाहते थे. So, he wanted to know them very well, you know, and therefore he started so he wanted to know and understand Indians very well and explore the imaginative universe. यानी भारत की जो दुनिया है उसको वो पूरा एक्सप्लोर करना, खोज करना चाहते थे. His first visit to India was mostly for pleasure. यानी वो एक pleasure trip, घूमने घामने के इसमें पहला विजिट उन्होंने इंडिया में किया था. ठीक है. And he wanted to visit his friend Masood, whom he had met in 1910 at Cambridge. यानी मसूद नाम के एक व्यक्ति जो कि इंडियन थे वो उनके साथ कैम्ब्रिज में पढ़ते थे. So he visited India in 1912-13 and again in 1921-22. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इस चैप्टर का या इस एसे का उन्होंने नाम इंडिया अगेन क्यों रखा. Because he visited India in 1912-13 and again in 1921-22. So that is why he wrote India again. No? India again. His literary works और जो उनकी रचनाएं थी, उन्होंने जो essays या इस तरह के जो लिखे थे वो हैं A Passage to India. ये बहुत बढ़िया बुक है, Passage to India. Where Angels Fear to Tread. ये एक और किताब उन्होंने लिखी थी, Where Angels Fear to Tread. And then A Room with a View. यानी एक ऐसा रूम जहाँ से नजारा बहुत अच्छा. इन्होंने 1908 में वो बुक लिखा था. A Room with a View. The Celestial Omnibus, a collection of pastoral and fanciful short stories. ये भी उन्होंने लिखा. उसका नाम था The Celestial Omnibus. Was a collection of pastoral and fanciful short stories. He penned 6 novels. 6 novels. यानी 6 novels भी उन्होंने लिखे थे. यानी ये हर तरह के लेखन में ये निपुण थे. Not just in essays, but even novels. Usually कोई एक तरह का स्पेशलाइज करता है कोई भी लेखक. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कविता की रचना भी लिख ली, शॉर्ट स्टोरीज की भी लिख ली, नॉवेल्स भी लिख लिए और ऐसे भी लिख लिया. So he penned 6 novels expressing his views on his experiences. So Vishnu, can you all hear me? Yes, sir. Okay. So the essay ये किस चीज के बारे में है ये ध्यान दीजिए. India Again is taken from one of his broadcasts given on BBC on his return from India in 1945. So India में से जब वो लौटे 1945 में
वो लंदन लौटे तो वहां पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन। तो उसको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसी का ये लेखा जोखा है जो इस बुक में इंडिया अगेन। He had come to attend the पेन कॉन्फ्रेंस at जयपुर, यानी उस टाइम में एक पेन कॉन्फ्रेंस हुआ था जयपुर में। पेन का फुल फॉर्म है पोएट्स, एसेइस्ट्स एंड नॉवेलिस्ट्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये है, यानी ये एक कंप्लीट साहित्य के विभाग का लोगों को बुलाया गया था जयपुर में कॉन्फ्रेंस, जिसमें पोएट्स जो पोएम लिखते हैं वो लोग की संगोष्ठी थी, एक सिम्पोजियम या एक कॉन्फ्रेंस था, पोएट्स एंड देन एसेइस्ट्स एंड नॉवेलिस्ट्स। तो इसी का मतलब होता है पेन। So he had come to Jaipur. Froster loved India. उनको बहुत प्रेम था उस कंट्री से। That is why he visited India twice. और उस जमाने में चीजें इतनी सिंपल नहीं थी कि आप एक हवाई जहाज में बैठे और 7 से 8 घंटे से आप लंदन से आप इंडिया पहुंच गए, क्योंकि ये उस समय का बात है जब इनका पहला विजिट था 1912 1912 में। हालांकि हवाई जहाज तो इन्वेंट हो गया था, लेकिन इतनी बड़ी इतनी दूरी के हवाई यात्राएं बहुत कम होती थी और कमर्शियल जेट लाइनर्स नहीं होते थे जैसे आज की डेट में एयर इंडिया, लुफ्थांसा, यहाँ से वहां लोगों को रोजाना चल रही है, तो वैसा यात्रा कम होता था। He must have come by ship. Even when Mahatma Gandhi he went to London for the round table conference, Golmej Sammelan के लिए जब वो गए थे, he did not go by air. उस टाइम हवाई यात्रा उतनी आसान या उतना फ्रीक्वेंट नहीं था। He had gone by ship, पानी के जहाज से गया, क्योंकि कम से कम 15 दिन, 13 दिन, 14 दिन का यात्रा था, बहुत ही थका देने वाला यात्रा। But because this gentleman, he loved India so much that he came to India. So the pen club, and he met and उस पेन क्लब के मीटिंग में he met many Indian intellectuals, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो पढ़ा लिखा वर्ग था भारतीय समाज का, इंडियन सोसाइटी के। बिकॉज रिमेम्बर, पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल्स थे क्योंकि वो सब लोग वहां पे लेखक लोग थे, इंग्लिश लिटरेचर के, जो साहित्य के सब लोग की संगोष्ठी थी। All the people were educated, so he had a chance to talk to them, mingle with them, आदान प्रदान विचारों के, उनकी राय जानने को उनको मिला, इन्होंने अपनी राय भी जाहिर की। So at the pen club, he was surprised at the interest in politics, more than artistic, social or economic problems. यानी और भी समस्याएं बहुत सारी थी, लेकिन जिन लोगों से बात किया उन्होंने पाया कि इंडिया में सारे लोग पॉलिटिक्स के बारे में रुचि रखते थे, उसके बारे में सबकी राय होती थी। So he was quite amazed. Although वो एक साहित्य की संगोष्ठी थी, लिटरेचर की संगोष्ठी थी, लेकिन सब लोग पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। So he found that very strange. He found them, यानी Indians जो वहां पे assembled थे, he found them keenly यानी बहुत ही रुचि के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, he found them keenly discussing political issues. It was not so earlier. पहले ऐसा नहीं था।
जब इन्होंने अपने फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट को उन्होंने कंपेयर किया, जो जो फर्क उनको इंडियन सोसाइटी में नजर आया है उस चीज का उन्होंने उल्लेख किया इसमें। So when he tried to speak on the agenda of the club, no one paid attention, as politics was utmost importance at that time. जब वो साहित्य की बात कर रहे थे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था उनकी बातों पर, क्योंकि सबके एजेंडा यानी सबके टॉपिक पे, सबके लिस्ट पे जो चीज सबसे ऊपर था वो था पॉलिटिक्स। It was of the utmost importance at that time. Foster noticed that externally India was the same. यानी externally बाहरी जो रूपरेखा है वो इंडिया अभी भी पुराने इंडिया के ऐसा ही है, तो खास बदलाव नहीं आया। Through the dirty windows of the train, यानी ट्रेन के जो शीशा होता है वो उस गंदे शीशे के थ्रू वो क्या देखते हैं? He sees the same landscape. Landscape मतलब वो खेत खलिहान सब एक तरफ का था, एक तरफा खेत खलिहान और ये सब। It was not much different. So he found that it was very all the same. कहीं भी आप ट्रेन से गुजरिए, आप यूपी में हो या बिहार में हो या बंगाल में हो, वैसे ही खेत खलिहान। तो वो कह रहे हैं कि जब ट्रेन के शीशे से जो उन्होंने ट्रेन की सफर की इंडिया में जब वो थे, तो वहां पे उन्होंने पाया कि जो लैंडस्केप या बाहर खेत खलिहान, बागीचे, फॉरेस्ट सब एक ऐसा था। He saw the same landscape, monotonous मतलब एक तरफा, एक ही तरह का, लेकिन कुछ जो थे एनिग्मेटिक भी थे। अरे यार ये क्या है, ये नया चीज है, ऐसा भी उनको दिखा। फिर कहीं कहीं रहस्यमय चीज भी दिखा ट्रेन के हिस्से, मिस्टीरियस एंड इवन सिनिस्टर। जो गरीबी या पॉवर्टी जो उनको दिखा वो बहुत डिस्टर्बिंग था, विचलित कर देने वाला था। पॉवर्टी वॉज सीन एवरीवेयर। एक चीज जो उनको हर जगह दिखा, ऑब्वियसली वो इंग्लैंड से आए थे। इंग्लैंड उस टाइम मतलब वो ऐसा हुकूमत था जहां पे कभी सूरज अस्त नहीं होता था। पूरे दुनिया पे अलग अलग जगह उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो वो तो इंग्लैंड तो बहुत डेवलप था उस जमाने में, और इंडिया जो कभी सोने की चिड़िया होती थी उसको अंग्रेजों ने, अंग्रेजी हुकूमत ने लूट लूट करके एकदम गरीब बना दिया। तो वहां पे भी उनको भी जो इंडिया में दिखा वो गरीबी ही ज्यादातर दिखी। तो पॉवर्टी यानी गरीबी was seen everywhere. The changelessness was the real India. The second change which made him happy was the lifting of the पर्दा system. यानी उनके पहले विजिट में जब वो आए थे तो उस जमाने में उनको बहुत उनको बहुत सारा वो दिखा था। जो लेडीज थी, औरतें इंडिया में, वो सब लोग पर्दा की रहती थी, और उनका मानना था कि ये चीज में वो खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक कि हमारी औरतें निकल करके फॉरवर्ड पढ़ लिख नहीं जाएंगी या हमेशा अपना चेहरा पर्दा के पीछे छुपाए रहेंगी, तो उनमें सही सक्रिय डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। So he was opposed to the parda system. So on his first visit, he had found that many women were wearing parda. लेकिन सेकेंड विजिट में देखे कि बहुत कम लोग पर्दा सिस्टम में था। इसको उन्होंने बहुत अच्छा साइन माना। It was a sign of freedom of women. Earlier, he had noticed that women were hardly ever seen. Public places में उन्होंने देखा था या उन्होंने नोटिस किया था कि women को शायद ही कहीं देखा जाता था पब्लिक प्लेस में। सारा काम
मर्द ही करते थे, औरतें घर में रहिए, आप बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि दे वर कमिंग आउट। Yeah, earlier he had noticed that women were hardly ever seen. कभी नहीं देखा गया, बहुत कम दिखती थी। Even in his second visit, he only saw some who were educated, जो पढ़ी लिखी औरतें थी। But he was pleasantly surprised to see them out on the streets openly. वो सड़क पर और राह पर वो लोग ओपनली घूम रही थी। ये देखकर तुमको अच्छा लगा, क्योंकि ये आजादी का सच्चा एक प्रतीक चिन्ह है, जब औरतें बाहर निकल करके अपना काम स्वयं करें, तो घर में ना बैठे रहें, सिर्फ घर के काम तक उनको सीमित ना रखा जाए। They're limited only to the house, the four walls of the house. That was not a good sign. So he was happy that they were coming out. उनको सड़क पे भी देख सकते। At some conferences, they outnumbered the men. देखिए कितना अहम बात है। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में औरतें ज्यादा थी आदमियों से। According to Foster, until gender justice is ensured, Indian nationhood and freedom is a distant dream. वो बहुत दूर का सपना है। ठीक है, लेकिन पहला जो चीज जो सब लोग को समझना चाहिए वो ये था कि yes, according to Foster, until gender justice होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सारे अधिकार पुरुष को और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं, उससे ये नेशन, ये गणतंत्र या आगे नहीं बढ़ सकता। Indian nation and freedom of a distant dream. The third change that he saw was the buffet system. ठीक है, इससे पहले जब फर्स्ट विजिट पे आए थे तो हमेशा खाना पीना जो है वो पत्तल सिस्टम पे था। आज भी हमारे गांव में लोग बुफे सिस्टम नहीं अडॉप्ट करते गांव में, वहीं पे पत्तल लगता है और सब लोग खाना पीना खाते थे। यस सर, ऐसा होता है। और बर्तन मट्टी के बर्तन में जो बनता आदमी था कोट कपड़ा। जो आदमी कोट पैंट पहने रहता, हाँ, और पत्तल पे खाना मिलता था, नहीं तो वो बहुत इको फ्रेंडली तरीका है। मिट्टी के बर्तन ये सर केला का पत्ता हमारे देखते हैं कि हम लोग के थर के प्लेट पे दिया जाता है, तो थर्मोकोल जो है वो इको फ्रेंडली तरीका नहीं है, क्योंकि वो सर केला का पत्ता है तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। नहीं इट इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल कि वो अपने आप में सड़ जाएगा और यूज करने के इसका आवाज कर रहा है। सो लेकिन उनको व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं, क्योंकि भाई जो अंग्रेज होते हैं वो हमेशा जूता कोट पैंट पहन करके जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको पहले तो जूता खोलना होगा, फिर आप अंदर जाइए, फिर आपको पालथी मार के बैठना होगा खाना खाने के लिए। So this is a source of inconvenience to someone who's dressed in the Western attire. Western attire मतलब shoes, trousers, shirt, उसके लिए समस्या है। लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंचे अपने सेकेंड विजिट में, तो इन्होंने देखा कि जबरदस्त चेंज हुआ था। बुफे सिस्टम, इनको कहीं खाने पे आमंत्रित किया गया तो वहाँ बुफे सिस्टम है, थाली लीजिए, उसमें से जितना लेना है लीजिए। दोनों सिस्टम का अपना अपना फायदा है। अगर कोई आपको परोसता है खाना, जैसे गाँव में होता है, तो उसमें आपको चाहिए थोड़ा सा, वो खूब सारा आपको खुश करने के लिए खूब सारा परोसते हैं। अब आप नहीं खा पाइएगा तो सब वेस्ट होगा, ठीक है, बेकार होता है, अन्न का बर्बादी होता है। तो वो एक अच्छा सिस्टम नहीं है।
हालांकि बुफे सिस्टम में भी बहुत अच्छाइयां हैं। उसमें एक अच्छा है कि भाई आपको जितना लेना है आप उतना ही लीजिए, तो खाना बर्बाद कम होता है। So the third change that he saw was the buffet system. In his previous visits, he had painful experiences when he was invited for dinners. बड़ा दुखदाई उनका तजुर्बा या एक्सपीरियंस रहा था पहले विजिट में, जहाँ पे उनको खाने के लिए बुलाया गया और जमीन पे बैठ करके पात वाला सिस्टम में उनको खाना था। So he had painful experiences. Whenever he was invited for dinners, but the buffet system was a relief. Relief मतलब जान बचे लाखों पाए, वो उनको एक बहुत अच्छा तरीका लगा। At the Pen Club, याद है ना पेन क्लब का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, पोएट ऐसे नॉवेलिस्ट poets, essays, Essays, and novelists. नोवेलिस्ट सर हाँ, Sir, I just check on Google. There is one more full form of pen is poet, editors, novelists. Is it true, sir? what is it? Poets, editors, and novelists. Poets, poet editors. Yes, sir. Yes. So are there two or just one that is mentioned? No, sir. Two, sir. Two. What are the two? Yes. As you say, sir, poet, essays, and novelist. Acha, and then there's Both are poet. written. Okay. Yes, sir. But I think this is the first one. Poets, Okay. essayists, Okay. and novelists. Editors Okay. जो होते हैं ना, वो writers नहीं होते, वो लिखते नहीं है, वो हाँ भाई ये बेकार है, इसको काट दो, इसको छांट दो, या यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने किसी का भत्सना किया है तो वो उसको नाराज हो सकता है, वो तो इसको छाट दो, जो सेंसर बोर्ड करता है, आप समझ रहे ना, दे एडिट, दे वॉच अ मूवी, और जो संवेदनशील लगता है उनको कहने नहीं, इससे किसी के सर आप धर्म जो को, बोले सर वही सही होगा सर। वो जो हाँ। बोला उसमें लास्ट में हाँ। एसोसिएशन दिया है ओ एसोसिएशन दिया है, सर लास्ट में। आपका वाला सर ठीक है। खैर यही है वाला, क्योंकि ये तीनों लिखने वाले हो गए, पोएट्स राइट, essayists they also write, and novelists they also write, तो लिखने वालों का। So at the Pen Club, one of the questions hotly discussed, hotly मतलब बहुत गर्मा गर्मी से डिस्कशन किया जाता था, that the use of English in India, उस जमाने में भी, आज भी एक ये डिबेट का टॉपिक है कि बहुत से लोग इंग्लिश को एक अलग निगाह से देखते हैं, कहते यार ये क्यों पढ़े हम, क्या फायदा, हिंदी हमारी मातृभाषा है, क्या जरूरत है हमें अंग्रेजी का। लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी कल्चर को देखेंगे, अगर जर्मनी है तो बहुत छोटा कंट्री, सब लोग जर्मन ही बोलते हैं वहां पर। इंग्लैंड है तो मैक्सिमम लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है ना, एक इतना डाइवर्स कल्चर का है, कोई यहाँ कन्नड़ बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, तो इस तरह के जब डाइवर्स कल्चर्स और किसी कंट्री में नहीं, तो अगर आप हिंदी को ही मान के चलेंगे कि नहीं हिंदी हिंदी, तो जिसका लैंग्वेज हिंदी नहीं है ऐसा लगेगा उसको कि आप मेरे पे हिंदी थोप रहे हैं, यू आर थ्रस्टिंग इट। हम लोग की मातृभाषा है तो हम लोग तो बड़ा खुश होंगे, लेकिन आप एक कोई तमिल या तेलुगु बोलने वाले को सोचिए कि नहीं भाई हिंदी आपके लिए अनिवार्य है, एक तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगा, उसको हिंदी सीखना पड़ेगा, एक नया लैंग्वेज, लिखना पढ़ना सब, तो ये फेयर नहीं होता। दैट इज द रीजन व्हाई आप साउथ में जाइए, आप नॉर्थ में जाइए, एक लिंक लैंग्वेज माना गया है इंग्लिश को इंडिया में। लिंक मतलब साउथ को नॉर्थ से जोड़ने वाली भाषा। महाराष्ट्र में जाइए, लोकल लैंग्वेज मराठी है, बट quite a few people will be able to speak English. So यहाँ पे जो भी ये जो डिबेट था, तो बहुत से लोग चाहते थे, तो इसमें हम सब लोगों को एक देश के रूप में आपको देखना है किसी भाषा का,
खाली अपनी सहजता या हमारे लिए क्या आसान होगा वो नहीं देखना. So that is the reason why English plays such a vital role. और दूसरी बात कि अभी भी जो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है, आपको अगर इंटरनेशनल बुक्स चाहिए, किताब, तो मेडिकल में हिंदी में कोई बुक्स नहीं आती हैं. ठीक है, मे बी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आता हो, नीट के लिए, लेकिन एक बार आप नीट में आप पहुंच गए, लीगल टर्म्स, जो लॉ की जो किताबें होती हैं, वो भी अधिकतर इंग्लिश में ही है. लीगल टर्म्स इंग्लिश में ही है. engineering के books, most of it is in English. तो हम लोगों को ऐसा, क्योंकि इंग्लिश को एक पूरे विंडो टू द वर्ल्ड माना गया है. आपको अगर संसार में देखना है, आप अगर आपको फ्रेंच आता है तो आप जापान जाइएगा तो आपको बहुत परेशानी होगी. इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज. हाँ, so English is such, but if you know English in Japan, if you go, enough people will speak English कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है. So that is the importance of English. एक global language है. It's a window to your world, window to the world. संसार में देखना है तो अंग्रेजी नाम की खिड़की से देखिएगा तो आपको सब कुछ दिखेगा, समझ में आएगा. So that is why. So it's not good to resent, यानी उसके प्रति एक द्वेष की भावना रखना, मेरे समझ से, क्योंकि हम लोग का एक अलग परिप्रेक्ष्य है, एक अलग कल्चर है. कहीं भी किसी भी कंट्री में, मतलब 72 भाषा में अखबार नहीं छपता है. ठीक है, अगर कोई जर्मनी में एक ही भाषा का छपेगा, जर्मन, मे बी इंग्लिश का भी छपेगा, लेकिन जर्मन, मोस्ट पीपल स्पीक जर्मन, बट आवर कंट्री इज वेरी डिफरेंट. It is a mixing pot of all cultures. So everybody has their identity, and everyone wants to live with their own identity. So you have to welcome that fact. कई बार ऐसा हो चुका है, साउथ में हिंदी थोपने की कोशिश हुई है, और उन लोग में एकदम मतलब कि हड़ताल और बंद और इस तरह का नौबत आ गया. अगर हम ही लोग को कोई बोलेगा, हम लोग का हिंदी का कल्चर है, लैंग्वेज है, कि ना हिंदी छोड़िए, अब आपको पंजाबी में, आपको सरकारी कामकाज का भाषा पंजाबी होगा, तो क्या हम लोग चुप रहेंगे? हम लोग भी विरोध अपना जताएंगे कि नहीं जताएंगे? तो वही वो लोग भी कर रहे हैं. तो अगर हम लोग कर रहे हैं तो सही है, और उन लोग कर रहे हैं तो गलत है. ऐसा तो नहीं हो सकता. यस, योर मदर टंग, जो मातृभाषा है, उसका इम्पोर्टेंस और कोई भाषा नहीं पूरा कर सकता है. You have to know your mother tongue. You have to be able to speak in your mother tongue. But you need to know other languages also. Can you all hear me? Yes, sir. Yes, sir. तो ये है. Yes, sir. Who is this guy? One second. Yes, sir. I just have to unshare the screen. अभी कोई सिग्नल दे रहा है कि आई एम इन द वेटिंग, प्लीज.
मुझे फिर से जाकर के एक बार ये करना पड़ेगा। हाँ खैर, so this is we see why extra language and especially in the Indian context, भारतीय परिवेश में एक इंग्लिश का एक अलग महत्व है। Yes. So, so this is all the things that he meant. So in the, yeah, according to Foster, gender justice is ensured. Indian nationhood and freedom. तो वो कहते हैं कि gender justice होना बहुत जरूरी है. Gender justice मतलब equality. पुरुष और महिलाओं में, ये लड़की और लड़कियों में. ठीक है. So at the Pen Club, one of the questions hotly discussed was that English in India. Those from the north, in North India, उत्तर भारत, यानी ये पूरा यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, ये नॉर्थ इंडिया में आता है. So those from the north preferred हिंदी और उर्दू. ये उस जमाने की बात कर रहा है. From Bengal, people preferred Bengali, but writers from the south, यानी लेखक जो है, writers from the south preferred English. Majority of the people Forster met spoke English. उस जमाने में भी जो मैक्सिमम लोग जिनसे मिले इंडिया में, वो सब लोग इंग्लिश बोलते थे. So Foster's last visit to India came to a sudden end. अचानक एक end में खत्म हुआ. He was back in London in December midnight. To Foster, it was not like his arrival in Delhi. जब वो दिल्ली आए थे तो पूरा उत्साह था, एक अलग उमंग था. लेकिन वापस जब घर पहुंच गया तो वो उत्साह, वो उमंग, it was not like his arrival in Delhi. So hence the author has attempted to elaborate the Indian life. यानी इस लेख में, इस essay में उन्होंने इंडियन जिंदगी को elaborate किया है और expand किया है, और डिटेल में इसके बारे में उन्होंने लिखा है. In its various true colors, जो अलग अलग रंग है, भांति भांति रंग, उसमें उन्होंने लिखा है. So any questions regarding this? Sanket? Sanket is here or he's gone? Can you hear me, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Where is Sanket here? Sanket is missing in action. Yes. तो आया तो था. तो ये था उनके. अच्छा, एक बार फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए कि E.M. Forster, he loved India. He wanted to talk about its people. He wanted to talk to the people. यहाँ की जिंदगी कितनी भिन्न है, अलग है, इसलिए वो आए थे. और वो एक बार नहीं, 2 बार आए थे. इसलिए इस ऐसे का उन्होंने नाम रखा है इंडिया अगेन, यानी फिर से इंडिया. पहली बार 1912-13 में, और 8-9 साल के बाद दोबारा वो इंडिया आए थे. That is why he is called this essay India Again. And he is full of praise for India. वो भारत के एक बहुत अच्छे दोस्त थे और उनको बहुत अच्छा लगता था इंडिया. And but he has also put अपने दोनों विजिट्स में उनको क्या फर्क नजर आया, क्या भिन्नता नजर आई. 8 या 9 साल में उनके नजरों में हिंदुस्तान कितना बदला था, वो उसका उन्होंने विश्लेषण किया है. पहले कहीं डिनर पे उनको बुलाया गया, बड़ा दिक्कत आया उनको, पेनफुल था जमीन पे बैठ के खाना, क्योंकि लाइफ में शायद वो पहले कभी नहीं खाए. एक अंग्रेज, हम लोग तो खुद ही आज की डेट में अपने घर में अगर खाना खाते हैं तो कौन नीचे पीढ़ा पे बैठ के खाना खाता है? आज की डेट में सब लोग डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर पे. तो हम लोग तो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं.
वही वो उनके लिए भी बड़ा कष्टदायक रहा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सेकंड विजिट में उन्होंने नोटिस किया कि बुफे सिस्टम बहुत जबरदस्त और तेजी से भारत में मतलब इन रोड्स पहुंच रहा है, घर घर में पहुंच बना रहा है। देन ही टॉक्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ द वुमेन। उस जमाने में जो पहले विजिट के दौरान वो देखे थे, तो पर्दा सिस्टम बहुत सब औरतें फॉलो करती थी। शहर या बाजारों में औरतें ना के बराबर नजर आती थी फर्स्ट विजिट में। लेकिन सेकंड विजिट में पर्दा सिस्टम उन्होंने कम देखा। बहुत सी औरतें थी जो बिना पर्दा के चल रही थी, और कई कई संगोष्ठी या सिंपोजियम में तो उन्होंने देखा कि औरतें की संख्या ज्यादा थी पुरुषों से। Yes, sir. So these are the variations that he has brought about. You have to keep an eye. This is nothing but the variation between the two visits. जो फर्क उनको नजर आया, यानी उनके नजर में 7 या 8 साल में कितना हिंदुस्तान चेंज किया। So describe the idea contained in the essay India Again. So the idea was about the changes that India had undergone. What all changes India had undergone. And the writer, E.M. Forster, he mentions the changes that he saw, or the things that he saw on his first visit, and how they had differed in the second visit, the difference. So that is the main outline of this essay. अब उसमें आप डिटेल में पॉइंट आउट कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस पाए औरतों के बारे में, पर्दा सिस्टम के बारे में। और फिर जो उन्होंने एक चीज देखा कि नॉर्थ और साउथ में इंग्लिश क्या बड़ा होड़ था, कंपटीशन था। नॉर्थ वाले लोग हिंदी या उर्दू प्रेफर करते थे। बंगाल Language में changing. बंगाल में बंगाली लोग प्रेफर करते थे। लेकिन जो साउथ के राइटर्स थे, साउथ इंडिया के, वो लोग इंग्लिश पसंद करते थे लिखने की भाषा। So that you can mention. What changes did he discover? Changes अभी मैंने सब जिक्र किया आपको। That those were the changes. Why did the author visit India again and again? So again and again कहना तो ठीक नहीं है ये क्वेश्चन में। Why did he visit India twice? Again and again का मतलब होता है कि कई बार, जबकि वो कई बार नहीं, सिर्फ 2 बार आए। But he loved India. He wanted to connect with the people of India. He wanted to see the Indian way of life and how it had changed from his first visit to his second visit, a gap of almost 8 to 9 years. So he wanted to see that. That is the reason why he came to India twice. And then summarize the essay India Again. Summarize and इसको संक्षेप में। So, any questions, guys? सर फर्स्ट नंबर एक बार फिर से बताइएगा। Hello, sir. रुक जाओ यार। हाँ रुको ना।
नहीं। नाक क्यों नहीं डाला? हाँ नाक क्यों नहीं? तुम अपना रोल नंबर मेंशन कर दो, रोल नंबर मेंशन नहीं किया हुआ है। नहीं तो अटेंडेंस नहीं बन पाएगा फिर तुम्हारा। नहीं देख क्या रहे हुआ हैं। है? रोल नंबर मेंशन कर दो। क्या हुआ है? आईडी के बगल में सर निकल गया थोड़ा। 12 मिनट करे हैं। हम्म, अटेंडेंस ले लिया सर आप? ले लिया। नहीं। सौरभ अटेंडेंस ले लिया। ले लिए, पर जिसका रोल नंबर नहीं है लिखा हुआ उसका नहीं हो पाएगा, अब्सेंट हो जाएगा वो। बार चेक करो तो मेरा हो गया, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे थे। हो गया तुम्हारा। हो गया है, मेरा भी कर देना, 18 है। संभव शर्मा। उस पे मेंशन करना रहता तुम। अब कर लेंगे। जूम के 18 सेटिंग कर में देना। जूम के सेटिंग में जाकर चेंज कर लेना, वहाँ पर फिक्स हो जाएगा सेव करके। ठीक है, कर लेंगे। नाक बना क्यों देना, नहीं कर बना मीटिंग इन देना। कर दो रे। हाँ, मीटिंग कर इन देते कर हैं दो। सेटिंग से। टाइम क्लास हो ऑफ होगा गया। ना। फर्स्ट कौन है? बता मीटिंग इन कर दो। रुको ना भाई, जो बेचैन भी कर। है कर दो हिंदी। अरे सर जी अब सुबह नहाएंगे यार, टाइम हो गया है। सर तो सुबह आप कौन करो। है? हाँ हाँ हाँ। 2 ऑफिस मिनट में बचा बैठा है है। तुम रे, खिलाड़ी हो गया तुम तेरे। रोशन। अब अंजे सर आएंगे। सर 3 मिनट बच रहा है अभी यार। और ए तो संभव, लगता है ऑफ करो यार। अरे जाना मुझे है तो लगता जाओ है ना भाई क्लास में तुमको बैठा यार, है रे। मैं मना कर रहा है, जाओ। इसको जाना जा। अच्छा अब जाओ। एंड में करना अभी। जरा ठीक से रहो यार। कौन भागने के लिए चाह रहा है रे? हम तो इस क्लास में रहो बैठे हुए। रोशन को बेचैन कर ले। क्या पटना है? सुबह में लगता है कि तो ड्यूटी कर रहा है रे। रोशन जी। गया का रोशन हो। फंडामेंटल का लिंक नहीं आया ना संभव? हाँ, आएगा तो होगा। चलो जिसको रहना रहो, हम निकलते हैं। अटेंडेंस ले लिया है? हम ले लिए हैं। ठीक। एग्जिट होते हैं। हम लीव चलो कर भाई रहे हैं। हम भी चलते हैं। कहाँ ठीक है चलते हैं संभव, रोशन जी? एंड अरे कर दो। चलिए ना, ये में क्या करना है अब। बड़ा दिन जा रहा है क्या चलते हैं रे? हाँ जा रहे हैं। टाइम मत यान करो, जाओ जाओ रूम करा। सौरभ कहाँ गया भाई? संकेश पूछो ना सर से, लीव कर दें। अरे सर है कहाँ, सर से पूछे। अरे तो पूछो सर तो सो मैसेज गया हूँ। करके। मैसेज करते हैं। जगाओ कोई सर। टाइम हो गया है, लिफ्ट कर दो। आना विष्णु जी। क्या? सर को जगाओ कोई, सो गए। मोजा में देना है, थक गया हूँ थोड़ा मैं। समाचार ठीक है ना? विष्णु तो पठान बन गया। चलो चलो आगे चलते हैं। आइए। जम्हाई ले रहा है। उसको नींद आ रहा है। सबको आ रहा है। आपका सूद को उठा है।
गलत काम करेगा तो नींद ना आएगा। सही बात बोल रहे हो। रात भर जगे हुए हैं। अब जल्दी मिलता है कि तुमको रात हो जगता है। अब विष्णु सो कर उठा है। सर नहीं आएंगे, एंड कर दो मीटिंग को। जल्दी नहीं मिलता है तुमको, रात हो जगता है। आर्यन है क्या रे? अरे रुक जाओ चोरी अभी सर करता है रे रात में। फंडामेंटल का आने दो। आर्यन अरे अटेंडेंस बना। अटेंडेंस बन गया पार्टनर। क्या बोला ब्रो? संकेत हमको बना अटेंडेंस तो बना दो ना यार। सर आए भी नहीं थे, सबको बना दो। स्क्रीनशॉट ले लो। अंकु हमको बना तो होस्ट। सर का मैसेज है, सर बोले वो एंड करने के लिए। चलो बाय। एक बार बाय। हमको बना ना, एक बार हमको बना ना होस्ट।